ଆଚ୍ଛା। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍‌ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯାଇଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 12 ଟୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ୍ 18 ଯାଏଁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତମର ଯେତିକି ଫ୍ରିଡମ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଯେମିତିକି ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 22 ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେମିତିକି ମାନେ ତମର ରମେଶ ଥାପରର କେସ୍ ହେଇଗଲା କି ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ରିଲେଟେଡ୍ କୋଉ ଧର କେସ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେସବୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ କ୍ରୋମ୍‌କୁ ଯିବା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ନୋଟ୍ ଅଛି ସେ 19ଟା ସେଇଠି ଲେଖିଦେବା। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ତମକୁ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍‌ର ଆମେ ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଟୁ ନେଇକି 19 ଯାଏଁ ସରି ଦେଖିଲେ 18 ଯାଏଁ 14 ତମକୁ କହୁଛି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆଉ 15 ତମକୁ କହୁଛି କି ତମର ରେସ୍, ସେକ୍ସ, ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏୱାଇସ୍ ତମକୁ କିଏ ବି ମାନେ ତମେ ସବୁ ସମାନ ଆଉ ମାନେ ତମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 16 ତମକୁ କହୁଛି କି ଏସବୁ କେସ୍‌ରେ ନେଇକି ତମକୁ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍‌ରେ କିଛି ବି ଉପର ତଳ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କିଛି ରିଜନେବଲ୍ ରିଜନ୍‌ରେ କିମ୍ବା କିଛି ଭଲନେରେବଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆଣିପାରିବ ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି କୋଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 16 ସବକ୍ଲସ୍ 4। ତ ସେଇଭଳିଆ ତମର ଆସିଛି କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 17 ଆର୍ଟିକଲ୍ 17 ତମକୁ କହୁଛି ମାନେ ଅନଟଚେବିଲିଟିର ଲ ମାନେ ତମେ କାହାକୁ ଯଦି ଟଚ୍ କରୁନ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଥାକୁ ତମେ ଏଯାଏଁ ବି ପାଳନ କରୁଛ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ଲି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ତମକୁ ଜେଲ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଦେନ୍ ତମର 18 ହେଉଛି କିଛି ତମେ ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେମିତି ତମର ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗେ ରାଜା ମହାରାଜା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ତମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ମିଲିଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ତମେ ରଖିପାରିବ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଏସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ତମେ ରଖିପାରିବ। ସେଇଭଳିଆ ତମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛି କି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଆର୍ଟିକଲ୍ 19ର କ୍ଲଜ୍ 1 ହେଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି କଥା ହେଉଛେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ଇଚ୍ଛା କହୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଚାଇନାରେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ହୁଏ ତ ଆମ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗିପାରିବ କାରଣ ସେଠି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସି। ତ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ଆମକୁ କିଛି ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ରାଇଟ୍ସକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ରାଇଟ୍ସ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି ଆଇ ହାଭ୍ ଦି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି ଯେମିତି ତମେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍‌ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ଲିବର୍ଟିର ଫ୍ରିଡମ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର କିଛି ଲିବର୍ଟି ଅଛି ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି କରିବି ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତ ସେଇଟା ମୋ ରାଇଟ୍। ତମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସି କାଲି ସକାଳୁ କହିବ ନା ତମେ ଏମିତି କର ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ପର୍ସନାଲ୍ ଥିବ ତ ସେମିତିଆ କେସ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍‌ରେ ତମକୁ ଲେଖିଲା କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋଭରେନିଟି ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେମିତି ତମର ଆଞ୍ଚ ଆସୁନଥିଲା ଭଳିଆ କଥା ତମେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ୍‌ରେ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ନେସନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଓଲଟା ସିଧା କହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଯେମିତି ନ ଭାଙ୍ଗୁ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପିସ୍‌ରେ ଚାଲିଛି ଯଦି ତମେ ତାକୁ ତମର ଇଏ ବଦଳରେ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ବଦଳରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତମେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଲ ଆଉ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବ ଦେନ୍ ତମକୁ କିଏ ତମେ ଯଦି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ କୋର୍ଟ କଲ ତ ତମର ସେଠି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ସେଠି ଧରାହେବ ନାହିଁ। ତମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ହଲ୍‌ରେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି କନଭରସେସନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆମଠୁ ଟିକେ ୱାଇଡ୍ କାରଣ ସେ ସେଠି ଯାହା ବି କହିବେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହେବନି। ବଟ୍ ଆମେ ଏଠି ଧର ତମେ ଦେଶର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସୋଭରେନିଟି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହିପାରିବ କେଉଁ କାମ କି ଧର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଉନି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ତ ସେଇ ସବୁ ହିସାବରେ ରୁହ ଆଚ୍ଛା ତ ସେଇ ସବୁ ହିସାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଓକେ ତାପରେ ହେଉଛି ଦ ରିଟ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆସେମ୍ବଲ୍। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବଲ୍ର ମିନିଂ ହେଉଛି ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଠି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବ। ଏବେ ଯେମିତି ତମର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ସବୁ ଦେଖିବ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟର୍ ରାଇଟ୍ସ। ଯଦି ତମେ ସେଠି ବଟ୍ ଏଇଟା ଲିମିଟେଡ୍ ତମେ ସେଠି କୌଣସି ବି ଆର୍ମର ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପବ୍ଲିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବ ନହେଲେ ତମକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯେତିକ ତମ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଲିମିଟେଡ୍ ସେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍। ଇଏ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ନୁହଁ ଯେମିତି ଆର୍ଟିକଲ୍ 17 କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ତମେ କାହାକୁ ଟଚ୍ ମାନେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ତମେ ଯଦି ଏଯାଏଁ ବି ପାଳନ କରୁଛ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପୁରା ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସେଠି କିଛି ଶୁଣା ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ତମର ଫ୍ରିଡମ୍ କେସ୍‌ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସୁଛି ତମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ କେସ୍‌ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହଦ୍ରେ ଏସବୁ ଲିମିଟେଡ୍। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ତମ ଉପରେ କିଛି ରିଜନେବଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲଗା ହେଇପାରିବ କାହା ଉପରେ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସୋଭରେନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦି ପବ୍ଲିକ୍
order. ତାପରେ freedom to form the association and the cooperative society. Again, the state can impose restriction in the interest of integrity, security and the sovereignty of the country. फ्रेंडली से जहाँ सब कथा तुम यदि फ्रेंडली जो रिलेसन जो आम कंट्री सहित अच्छी तुम यदि ना किसी एपट सेपट कथा तुम फ्रीडम को यूज करके कल देन इट इज भाउलेटिव. द फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज जमी आम बहुत सारा अच्छी तुम कर यहाँ तुम फ्रीडम ऑफ राइट जोटा कि आर्टिकल 19(3) रे लिखाई. And the Police Force Act of 1966 prohibits the police personnel from forming the trade unions. द ट्रेड यूनियन भी तुम फॉर्म कर पार. ट्रेड यूनियन कौन धर तुम जब गोटे जाऊच मैंने प्राइवेट कंपनी को तो सेठी कौन से मैंने न था जो मैंने कि प्राइवेट कंपनी किसी कथा को लेकिन गवर्नमेंट आगे पहुँचे को तो डायरेक्ट एम्प्लॉई जाई पारिबनी ना. तो से जो से काम छोट छोट यूनियंस आसे से ट्रेड यूनियंस तुमको लेकिन तुम माने तुम कथा को धर तुम प्राइवेट कंपनी किसी तुम ये अच्छी से कथा को लेकिन पहुँचेबे गवर्नमेंट पाखे है. Then the constitution also allowed the parliament to pass a law restricting the right to form a political association of the member of the armed force. जदि आर्म फोर्स कि तुम इंटेलिजेंस ब्यूरो कि एमती जगह तुम अच्छ तुम जब कह कि ना आम गोटे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनइबू एटा आम राइट सेमती हो पार नहीं. समस्त सब आर्टिकल्स तुमको दि जाए विथ ए रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन. से रेस्ट्रिक्शन साहाଯ୍य तुम जदि रेस्ट्रिक्शन भितर रही तुम फ्रीडम राइट को यूज कल देन यू आर ओके ना तुमको जेल जीव. देन तुम आर्टिकल 19(4) कौच फ्रीडम टू मूव फ्रीली माने तुम इंडिया रे चाहिए कौ जगह भी जाइकी बुली पार तुमको कहीं भी अटकेबे ना. बट इट हैव रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन. तुम एमती कहबनी कि काली सकाळू मु जीवी हावारिएशन सेंटर टी बुल दे आसबी इसरो जीवी टी बुल देकी आसबी जो जगह आम रेस्ट्रिक्टेड अच्छी धर जो नेशनल पार्क है कि कौन भी जगह धर बफर जोन ने अच्छी माने नेशनल पार्क कोर जोन अच्छी जोटि तुमको जीवाई रेस्ट्रिक्टेड तथापि तुम कथा न मानिक जीव तो सेठी तुम कहबनी कि तुम फ्रीडम टू मूव फ्रीली भाउलेट्स हो. बट सेटा तुम देख किसी ट्राइब भी था जो शेड्यूल ट्राइब था केतक आदिवासी था प्रिजर्व करा गवर्नमेंट प्रिजर्व कराए एथिपाई कि किसी यूनिक प्रथा अच्छी किसी यूनिकनेस अच्छी. तो से जो तुम सहित बेस इंटराक्शन कले निजर कल्चर खराब हो पारे. तो से जो कहबनी कि मुझे जीवी माने जीवी सेटा मोर राइट सेमती हो पार ना है. किसी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन ने तुमको रखा जाई पारी बो. आर्टिकल 19 क्लॉज 5 कौच द फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस मु जो जगार चाहिए जाकि रहीपरि. बट तुम जमती ए देशर कौन भी सिक्यूरीटी कि तुम पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कला भाया कम किसी करूँ कि जो जाए शेड्यूल ट्राइब मैंने रोच जगार कह जाए मुझे रही तो तर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट पाई तुम ए राइट को भी रखा जाई पार. फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस तुम जो टाइम जम्मू काश्मीर थिला जम्मू काश्मीर अलग कन्स्टिट्यूशन थिला अलग लॉ थिला से जो सेठी लोक मैंने जाकि आगुरी रही पारु नथिले घर करिकी. बट अकॉर्डिंग टू द 2019 जितेबाला आम जम्मू एंड काश्मीर और लद्दाख जितेबाला आमर एक्चुअली स्टेट रे सामिल हेले एबे तुम जाकि सेठी घर करिकी रही पारिबो कि अलाउड टू रेसिडेंस है. देन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन तुम आज इंडिया रे जाऊ सारा काम करुच तुम जो मैंने सब एंटरप्रेन्योर मैंने आसुँच तुम जो एंटरप्रेन्योरशिप नुआ नुआ बाहर ये सब एक्चुअली तुम राइट रे अच्छी. काल सकाळू गवर्नमेंट कहबनी कि काम तुम कर ना एटा माने मो इच्छा जहाँ मो स्टार्टअप मुझे पारि. बट सेम थिंग तुम लॉ एंड ऑर्डर कि कौन इमोराल कि कौन इलीगल काम कर ना तुम जहाँ इच्छा तुम प्रोफेशन तुम ऑक्युपेशन तुम फ्रीली एठी करि पारिबो. बट जमती तुम लिमिटेशंस बाहर को एसबू जिन जावा कथा नुह. दैट इज द आर्टिकल नंबर 19. सेमती आर्टिकल नंबर 20 तुमको कौच द रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनाल लेजिस्लेटर माने धर मुझे 2019 किसी गोटे केस कर बट से केस रिलेटेड किसी नुआ आईन फास्ट टाइम किसी आईन जो क्राइमटा मुझे 2019 ने से वाइज किसी नुआ क्राइम आसला तुम 2022 रे किसी लॉ आसला. तो 2022 रे जो लॉ आसला बट मु क्राइम करी 2019 ने तो मते एबे से केस पाई सजा दिया ही पार ना. जदि मुझे आईन बाहर पूर्वर किसी दोष करी जोटि कि प्रॉपर किसी भी आईन कानून नाला तो मते से जगह दोष दि जाई पार ना. इट्स मीन दैट द क्रिमिनाल लेजिस्लेटर कैन नॉट बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. यही सब जिन माने लिखाई छोट छोट जिनस कौन भी क्रिमिनाल लेजिस्लेशन तुम क्या मर्डर कर देके आसो कह ना कि लॉ नाला सेमती ना. इट्स applicable in the civil cases or जो cases तमर कोर्ट मंजूरी दब. and immunity cannot be used against the provision of prevention detention and
also does not cover the trial ଯଦି ତୁମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଛି କି ତୁମର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ରେ ତୁମକୁ ରଖାଯାଇଛି ତୁମେ ସେଠି କହିବନି କି ନା ମୋର ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଡିଟେନସନ୍ ମାନେ ତୁମକୁ ସେ ଡିଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା। ବଟ୍ ଏଠି ତୁମକୁ କହୁଛି କି ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ କରିଛ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଲ ନଥିଲା, ସିଭିଲ୍ ଲ ହେଉ କି କୌଣସି ଏମିତିଆ ଲ ହେଉ, ବଟ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଲ ନୁହଁ, ଏମିତି ତୁମେ କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିକି ଆସିକି ତୁମେ କହିବନି କି ଏଠି କୌଣସି ତୁମର ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା ଦ ଲ ଅଲସୋ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବାଇ ଦି ଲ ଫର୍ ଦି ଅଫେନ୍ସ କମିଟେଡ୍। ଯେମିତି ଆମ ଲରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ତୋର ଚୋରି ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ, ହତ୍ୟା ପାଇଁ 7 ବର୍ଷ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ରେ ଜେଲ୍ କି କିଛି ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା କି ନୋ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ପେରି। ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, ମୋତେ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ ଜେଲ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ନା ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ରହିକି ଆସିଥିଲୁ ତୋର ହେଲାନି, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯା ଆଉ 2 ବର୍ଷ ରହିକି ଆ, ସେମିତି ହେବନି। ଡବଲ୍ ଜିରୋ ପାରି ମାନେ ତୁମକୁ ଡବଲ୍ ଥର ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍। ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ କ'ଣ କି ମୁଁ ଯଦି ଧର ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେବାର ଏବେ ଦେଖିଲି, କି ଧର ମୁଁ ଏବେ ଧର କୌଣସି ଜିନିଷର ଗଭା ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷରେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ହିଁ କେସ୍ ଆଗକୁ ଯିବ, ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାଇକି କହିବି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋ ଉପରେ କି କିଏ ବି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ କଭାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି, ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା କି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ତୁମକୁ କି ପ୍ରେସର କରୁଛି କି ଫୋର୍ସ କରୁଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ନେଇପାରିବ, ବା ତୁମର ଆର୍ଟିକଲ୍ 20ର କ୍ଲଜ୍ 3 ଯାହା ଲେଖା ଅଛି କି ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍ ବାଇଜ୍ ତୁମେ ସେଠି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୋର ରାଇଟ୍। ତୁମେ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଧର ଇଏ ତ ଗଲା ତୁମର ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ୍, ଧର ତୁମେ କିଛି ତୁମର ବି କିଛି ହେଇଛି କେସ୍, ତୁମକୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି, ୟୁ ହାଭ୍ ଅ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସାଇଲେନ୍ସ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସାଇଲେନ୍ସ ରହିପାରିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ତୁମକୁ କହୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କେମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ତୁମକୁ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ତୁମର ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟିକୁ କେହି ବି ଡିପ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦି ପର୍ସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି, ମୋ ହକ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ବହୁତ ବ୍ରଡଲି ଲେଖିଲା, ବଟ୍ ଲିବର୍ଟି ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହାନି କଲା ଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିବ, ଦେନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ଟୁ ମାଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ର ହନନ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଯିବି 32 ପାଖକୁ। 32ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରିଟ୍ର ଆର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି, ଦ ହାବିୟସ୍ ପର୍ପସ୍, ଦି ମାଣ୍ଡାମସ୍, ଦି କୋୱାରେଣ୍ଟୋ, ଦି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମ କେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ରିଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ ଆଇଦର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ୍ 2 to 6, ତୁମେ ଯାଇକି ସେଠି କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦେଇପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଭିତରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ କି ତୁମେ ଯଦି ଦେଶ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଯେମିତି ଲେଖିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଦେଶ ଭିତରେ ବୁଲୁଛ, ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍। ବଟ୍ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 19 ଲାଗୁ ହେବନି ନା। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦି ଆର୍ଟିକଲ୍ 21, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପର୍ସନାଲ୍, ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଅଫକୋର୍ସ ପାସପୋର୍ଟ ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ସବୁ ରଖନ୍ତି କି ତୁମେ କେତେ ମାସ ପାଇଁ ଯାଉଛ, କ'ଣ କାମ, ଏସବୁ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ସେ ଯେଉଁ ପାସପୋର୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ହୁଏ। ଦେନ୍ ତୁମର ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ଯଦି 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ରହିଯାଉଛ, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ ପଡ଼ିବ, କି ତୁମର ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତୁମ ପାସପୋର୍ଟର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ଥିବ, ଧର ମାସେ ପାଇଁ ତୁମେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇଛ, ତ ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ନ ଆସିପାରିଲ, ତୁମର ସେ ପାସପୋର୍ଟର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି କଟିଯିବ, ପୁଣି ସେଠୁ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେ କଲାବେଳକୁ ତୁମକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେବାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଲା ସେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ହାଜ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଡ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଜ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଗ୍ନିଫାଏଡ୍ ଲାଇଫ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି ସହ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ନିଟି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପୁଣି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ମୁଁ ଇଜ୍ଜତର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ମୋତେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ଦେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍। ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଅଲ୍ ଅଦର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ମିନିଂଲେସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ହିଁ ନଥିବ, ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ରେ ରହି କ'ଣ କରିବ? ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 21 ବିନା ସବୁ ରାଇଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ଅନନେସେସରି। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଧର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ୍ ଲାଗିଲା, ତ ମିଲିଟାରୀ ରୁଲ୍ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବ, ସେଠିକି ତୁମ ପୁରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବ କି ତୁମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍, କି ତୁମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏସବୁ ମାନେ ତୁମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ସେବେ
कटिଯିବ ହେଲା। ତ ତୁମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମେ ଧର ମାର୍ସିଆଲ ଲ ଲାଗିଛି ତୁମେ ଯାଇ କହିବ ନା ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକି ବୁଲିବି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଗୁଳି କରିଦେବେ। ତ ସେ କଥା କହୁଛି କି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଲୋକର ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାର ରହିବା ହିଁ ଦରକାର। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ 21A କୁ ଆମେ ଆସିବା, ଫାଷ୍ଟ ତୁମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆର୍ଟିକଲ 25ରେ ଥିଲା କି 0ରୁ କି ତୁମର 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆହେବ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 45 ଅଣ୍ଡରରେ। ବଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ 2002 amendment act of amendment number 84 and year is the 86 constitutional amendment in 2002, जो 6ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆହେବ ସେଟା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 21A ରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 26 ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସେଠି ତୁମେ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ତୁମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି 0 to 6 ଇୟର୍ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର, ସେଇ ଯେଉଁ ତୁମର ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଫ୍ରି ସ୍କିମ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ସେ ସବୁ ତୁମ DPSPରେ ତୁମ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ହେଲା ତୁମର ଇଏ ସବୁ ହେଲା, ସେ ହେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ DPSPରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 21A ୱାଇଜ୍ ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ମିଳୁନାହିଁ, ମାନେ ଏଠୁ ହେଉଛି ତୁମର ରାଇଟ୍, ସେଟା ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ବଟ୍ ସେଠି ଅଛି କି ଏଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ରାଇଟ୍, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ସେଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବ 0ରୁ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କୁ। ଏଟା ପରେ 2002 ପରେ ଆର୍ଟିକଲ 45 ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଜ୍ରେ। Then Article 22 तुमको कौची, the Article 22 deals with the protection against the arrest and detention in certain cases। माने तुमर जदि किसी भी अरेस्ट माने माने तुम होउछ तुमको किसी डिटेन रखा जाइछि, जोटा कि तुम मु आगुर कोन कहितली प्रिवेंटिव डिटेंशन, तुमको जदि प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रे रखा जाउछि तेनु सेठी तुमर किसी भी से जो जिंस सुना हबो नाही, जहा कि आर्टिकल 20 अंडर सब लिखा हैतला। तुमको जदि प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर रखा होउछि कि तुमको जदि डिटेन करा होउछि कि तुमको जदि जेल होउछि तो ता पई किछि लॉ अछि, तो ता पर किछि फंडामेंटल लॉ अछि, मोर एतिकी हक अछि कि मु जेल पाई साला पर कि मु प्रिवेंटिव डिटेंशन रे रहि साला पर भी मोर एही सब लॉ एक्टिव हेकी थिबो। फर्स्ट कोन, दिस आर्टिकल इज एप्लीकेबल टू फॉर द बोथ इन द सिटीजन्स और नॉन सिटीजन। जो नॉन सिटीजन भी हम इंडिया को आसीबो सी भी माने ए सब लॉ रो उपभोग करि पारिबो। This provision extends certain procedural safeguard for the individual in case of an arrest। जदि किछि अरेस्ट हो जाउछि ये ताको किछि procedural safeguards दबो, and it comes into the picture after a person has been arrested। It is not a fundamental right against the detention and the arrest। जदि किछि देखो it comes into the picture after a person has arrested, जते गोटे पर्सन अरेस्ट हो गला पर ए सब जिंस आसुची, and it is not a fundamental right against the detention and the arrest। जदि तुमको डिटेन करके रखा जाउची कोनोसी जिंस पय धर जेमते मु कहली प्रिवेंटिव डिटेंशन कथा, माने तुम किसी क्राइम करिया को जाउछ तुमको शक हैला बोल तुमको रखा जाइछि, तो सेठी तुम कहबनी कि एते सारा जिंस हैला मोर काहे सब लॉ फॉलो हैलानी। ये होउची कि तुमको धर अरेस्ट हो जाइछ, तुम एबे जेल ले अछ, माने तुम अरेस्ट होबार अछि कि तुम अरेस्ट हो जाइछ, तुम जेल ले अछ, तो सेठू ए सब राइट तुम एक्टिवेट हबो। बट तुमको जदि प्रिवेंट करा जाउची किछि जिंस पई सेठी ए सब जिंस एप्लीकेबल हुए नाही। से जो आर्टिकल 22 रो ए तुमको कहूची, एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एज टू व्हाई ही हैज बीन arrested। Further, he cannot be denied the right to consult an advocate। माने मु जदि अरेस्ट होउची एटलिस्ट तो मते इन्फॉर्म करो कि मु काहे अरेस्ट होउची, कि मते माने कुह एक्चुअली मो रीजन मोर अरेस्ट होर रीजन मते कुह। आ मु जदि गोटे एडवोकेट सहित कथा होको चाहूची सेटा भी मते मोर गोटे राइट, तुम चाहिए मते मना करि पारिबो नाही, ना तू एकात्र जा तो किछि मिलिबोनी, एकात्र तोर एटी देखा साक्षात, तो सेमिति हेई पारिबो नाही। तुम ए अंडर भी आर्टिकल 39 अंडर तुमको फ्री लीगल एड दिया जाउची, तुमको किछि गवर्नमेंट माने वकील जोगाए जा कतरे पैसा पत्र नाही, सेटा स्टेट रो कर्तव्य, बट एटा तुमर हक, तुम चाहिए गोटे एडवोकेट सहित कंसल्ट करि पारिबो, तुमको सेति पई स्टेट मना करि पारिबो नाही। आर्टिकल 22 क्लास 2 रे कोन लिखा जायछि, अरेस्ट रो गोटे दिन माने 24 घंटा भितर तुम कोनोसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट पाखरे तांको नै कि आज बॉडी पेश करिवो कि आकु आमे अरेस्ट करिक आनिचु बोली। आ से जो 2 आवर्स तुमरो लागुची ए सब जिंस माने 22 आवर्स जो लागुची 24 आवर्स से जिबा आसबार टाइमिंग को छाड़ी कि 24 आवर्स। जदि मु जिबा आसबा टाइम तुम एमती कहबोनी कि मु गोटे दिन जिबी गोटे दिन आसबी, सेमती हेपरिबोनी। घंटे 2 घंटा एडजस्टेबल, 24 घंटा भितर तुमको से बॉडी बा तुमको जहाँ अरेस्ट करके आनीच ताकू नहीं कि तुम जुडिशियल मजिस्ट्रेट सामने पेश करइबो। ओके, देन आर्टिकल 22 सपोज 3 कौन कहूँ, नो इंडिविजुअल हु हैज बीन
arrested can be kept in the custody for more than the period determined by the judicial magistrate. মানে no individual has arrested can be kept in the custody more than the period determined by the judicial magistrate. ମାନେ judicial magistrate ତମକୁ ଯେତେ ଦିନ ତାକୁ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିବାକୁ କହିଥିବ ତାକୁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ହିଁ ତମେ କଷ୍ଟଡିରେ ରଖିପାରିବ, ତା ବାଦ ତମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ତାକୁ କୌଣସି କେସ୍ରେ 3 ମାସରୁ ଅଧିକା କେଉଁଠି ରଖୁଛ କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ କି ତମର କୌଣସି ଯାହା ବି କଲ ତମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲ ଯାହା କଲ, ତମେ ଯଦି ତାକୁ 3 ମାସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲ, 3 ମାସ ପରେ ତମକୁ କୌଣସି ବି ହାୟର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କି କୌଣସି କୋର୍ଟରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଦରକାର କି ହଁ ଏ ଲୋକକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏ ଲୋକ ଏବେ 3 ମାସ ଉପରେ ଆମ କତିରେ ରହିଲାଣି। ତ 3 ମାସ ପରେ ତମକୁ କାହାକୁ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ତମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିଛ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲରେ ରଖିଦେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। और ये सब जिन तुम आरेस्ट हो सारा पर एंड दिस एनिमी जो मैंने आम दिस सेफगार्ड्स आर हाउएवर नॉट एप्लिकेबल टू दी एनिमी एलियंस को एप्लिकेबल जो मैंने फ्रेंडली थे। एनिमी एलियंस पाकिस्तान जो मैंने आसते कहे मत दरकार सब जिन कहीं आरेस्ट हेली कौन हेली, यू आर एनिमी एलियन, यू आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, सो दैट इज डजंट एनी कन्वर्सेशन विथ यू एंड द पीपल आरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ओके, जो मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ रे अरेस्ट होचंती सेमानक पई ए सब जिंस एप्लिकेबल नुह, तेणु ए तीनटा लिखि देथिबो एनिमी एलियंस आ प्रिवेंटिव डिटेंशन पई तमरो ए सब जिंस एप्लिकेबल नुह बोली। एंड व्हाट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन? दिस आर टू टाइप ऑफ डिटेंशन, गोटे होची प्यूनिटिव आ गोटे होची प्रिवेंटिव। द प्यूनिटिव डिटेंशन इज द डिटेंशन आफ्टर ए ट्रायल, द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ए डिटेंशन विदाउट द ट्रायल। प्यूनिटिव डिटेंशन हूँ गोटे ट्रायल हो गला देन तुमको डिटेन करके रखागला, गोटे क्राइम हो जाए। देन प्यूनिटिव माने विदाउट ट्रायल, किसी जिन बोधे है तुमको प्रिभेन्ट तुमको डिटेन करके रखा जाए। तो आइडिया बिहाइंड द प्रिभेन्ट एन इंडिविजुअल टू कमिटिंग ए क्राइम, जदि से किसी क्राइम करने जाऊथो ताको जदि प्रिभेन्ट करके रखा जाए देन इट इज द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तापर किसी भी क्वेश्चंस करा जाई परिबो नाही। एकदम लिखला जमती व्हाट आर द 6 फ्रीडम्स गारंटेड बाय द राइट टू फ्रीडम। से जो लिखला तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 1 टू असेंबली, 3 एसोसिएशन, 4 मूवमेंट, 5 रेसिडेंट, 6 प्रोफेशन, 7 तुम थिला कोटा तुम से जो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि तुम कटा है कि अच्छे आर्टिकल नंबर 300 सब क्लॉज नंबर ए जोटा फास्ट भी कही जोटा कैपिटल ए लिखा जाइए से गुड़ाक तुम कॉन्स्टिट्यूशन ने पर ऐड होती, जोटा स्मॉल ए बी सी डी सब लिखा जाइए से गुड़ा तुम कॉन्स्टिट्यूशन फार्मिंग बेले से मैंने लिखिकी जाइए। ओके, देन व्हाट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंपोर्टेंट छाड़ा सब तो क्वेश्चन किसी अच्छी बट आम देखिए कौन कौन अच्छे पेज। अच्छा नेक्स्ट मारिया कौन अच्छे आर्टिकल 19 20 सब जिन देख लो है। देन कौन सब हो देख लो ये सब जिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, प्रोफेशन सब जिन देख लो। तापर तुमको आर्टिकल 19 सब प्लस 2 कौच कि रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर ये सब जिन पार। एंड फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन, ये तुम 19टा ओनली सिटीजन को ही मिली। एंड रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रिजनेबल एंड एनेक्टेड बाय लॉ एंड कोर्ट balance individual liberty and public interest. रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन 1950। तो रमेश थापर केस रे कौन लला द चैलेंज टू द प्रेस रिस्ट्रिक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए जर्नल एंड हेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस आर फंडामेंटल, स्टेट मस्ट जस्टिफाई रिस्ट्रिक्शंस। ओके, कौन हला ना तुम जेहेतु भी तुम माने ये जो रमेश थापर केस रे तुम प्रेस फ्रीडम तुम कौट लिखाला आम जो आर्टिकल 19 क्लॉज ए टू जी जाए जहाँ देखिले से कौ क्लॉज रे आमको तो प्रेस लिखालानी तुम एक्चुअली जो आर्टिकल 19 ने क्लॉज ए रे जहाँ सब लिखाई अच्छी से तुम इनडायरेक्टली इंडिकेट करे फ्रीडम माने तुम 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी जहाँ को तुम कहती से जो जर्नाल्स कि तुम प्रेस माने दे आर द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। और पावर किए दौर तुम आर्टिकल 19 ए इनडायरेक्टली लिखी से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दैट इज गिव्स प्राइज टू द पावर टू द प्रेसेस जो मैंने सब छापुंट जहाँ भी किसी कहते ये सब केस रे 19 ए दौर पावर तेणु से कहगला कि हेल्ड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फंडामेंटल, स्टेट मस्ट जस्टिफाई रिस्ट्रिक्शन से गुड़ाक फंडामेंटल राइट बट तुम्हें किसी स्टेट तार रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाई करवा दरकार। तुम जोटा कि रमेश थापर केस रे है सेठी तुम गोटे जर्नाल ने जहाँ भी सब जिन छपा जाता तार डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता तो तार रेस्ट्रिक्शन उपर कि तुम प्रेस को ये सब जिन करहब कि ना ये सब जिन
प्रश्न आसला तो से जो तुम सुप्रीम कोर्ट कहला कि हाँ प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तुम फंडामेंटल राइट बट किसी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन रखिपार स्टेट मस्ट जस्टिफाए द रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाई भी तुम कर देन Kedarnath Singh versus State of Bihar in 1962 in challenges regarding the sedition convictions held the seditions constitutionally valid but confined to act enacting violence or the public disorder कि तमरो sedition charges कौन तमरो जो टाइम रे माने सेडिशन जो तुम लगी क्या रिसेंट केस राहुल गांधी जो केस होता राहुल गांधी को तुम सुप्रीम कोर्ट दे देता कि 2 years जेल तो से जो 2 years जेल कथा जो तुम कौच से 2 years जेल जदि तुमको होगला तुम आउ आगामी 5 वर्ष जाए कौन भी पॉलिटिकल पार्टी रू लड़ी पार ना से जो जब तुम 365 दिन रू 364 दिन भी हो जाता माने धर 2 years 300 नहीं 300 300 600 60 60 120 730 धर जब तुमको 730 दिन भी 725 दिन को जेल हो जाता तुम सब जिन उपभोग कर पार बट जब 2 years पूरा जेल होगला देन तुमको 6 वर्ष जाए कौन भी जगार लड़िया को देवे ना बट केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कौन लिखा कि 1962 रे तुम यही जो सेडिशन कन्विक्शन टाक चैलेंज करागला कहगला कि हाँ सेडिशन तुम कन्स्टिट्यूशनली वैलिड बट कन्फाइंडेड टू एक्ट इनिशिएटेड भायोलेंस और द पब्लिक डिसऑर्डर जदि कौन जिन भायोलेटिव हो पब्लिक डिसऑर्डर हो तो सेठी तुमको सेडिशन चार्जेस लगे ही लगे है देन इट इज योर बिनेट कोलेमैन एंड दी श्रेया सिंघल से कौन होता ना यहाँ भी तुम से जो 1973 रे गोटे केस होता से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंटीग्रल टू दी 19(1)(a स्टॉप डाउन एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन है एंड कौन श्रेयस नेगल 2015 कौन होता ना सेडिशन अंडर दी 66A जोटा कि तुम इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रो सेक्शन नंबर 66 रो क्लॉज ए रे लिखा जाइए स्टॉप डाउन फॉर दी जो भगनेस एंड दी ओवरब्रेथ अफेक्टिंग ऑनलाइन स्पीचेस ओके माने तुम जदि किसी जिन हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम इंटीग्रल पार्ट होगला 19A जोटा तुम कहली कि लिखा जाए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भाया लिखा जाइए बट से तुम इंटीग्रल पार्ट होगला तुम यही बोनेट कोलेमान केस तुम फ्रीडम ऑफ प्रेसटा तुम आटाच होगला इंटीग्रल होगला आर्टिकल 19A को और स्टॉक डाउन कर दिगला जो एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शन लगा होता ताकू स्टॉक डाउन कर दिगला 1973 रे ओके देन तुम स्नेस निगल और 2015 कौन है ना ये जो कहगला कि सेक्शन 66 को स्टॉक डाउन है माने जदि कौन तुम ऑनलाइन किसी जिन स्पीच दौच जदि सी भी किसी जिन भायोलेटिव हो माने जो जिन ओभर रिच हवा कथा नुह तुम जहाँ फंडामेंटल राइट्स तुमको दि जाए तुम कह ऑनलाइन भी कह बट जमती तुम देशर इंटीग्रिटी कि तुम एसबू जिन कौन भी अफेक्टान्स आसू है देन केस तुम यहाँ तो गला देन इज योर आर्टिकल 19 हूँ तुम इज इवॉल्व नैरो टू मोर एक्सपेंसिव प्रोटेक्शंस कोर्ट अप्लाई रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड स्ट्रंगर प्रोटेक्शन फॉर दी पॉलिटिकल स्पीचेस कारण पॉलिटिकल स्पीचेस थाए अधिका एंड रिसेंट डिसीजन एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू दी ऑनलाइन स्पीचेस तुम प्रोटेक्शन अच्छी बोली ना तुम कहीपर तुम जो IT एक्ट आसला 2019 जो IT एक्ट आसला से IT एक्ट वाइज तुम बहुत सारा जिन एवं तुमको धर एवं ऑनलाइन तुम जो चैटिंग हो तुम जो टेक्स्ट मेसेज आसूँ फोटोज भी हो सी भी कोर्ट रे एप्लिकेबल है देन आर्टिकल 20 तुम लिखल एक्स पोस्ट फैक्टो से जो नो रेट्रोगेटिव क्रिमिनल लॉ जदि मु टाइम रे क्रिमिनल एक्टिविटी करी जदि से टाइम रे कौन लॉ बाहरी नथिला तो तापर मते सजा ही पारिबो नाही बट क्रिमिनल केस न हवा दरकार तापरे इज अप्लाइज टू द पर्सन नॉट ओनली सिटीजन्स अप्लाइज टू द पर्सन नॉट ओनली टू द सिटीजन्स माने ये तुमरो द प्रोटेक्शन एक्टिव वंस अक्यूज्ड इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओके क्रिमिनल प्रोसीडिंग ए सब जिन माने एप्लिकेबल नुह तुम थर कह कि मुझे गोटे क्या मर्डर करके आसी से सब जिन एंड एनश्योर्स द फेयरनेस इन द क्रिमिनल जस्टिस एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोसेस अच्छा नो डबल जुरी तुम जान सेल्फ इनक्रिमिनेशन जान तुम नैक्रो टेस्ट जो ब्रेन मैपिंग ए सब जिन तुम होता जमी तुम गोटे आसला सेल्फ इनक्रिमिनेशन जो केस नंदिनी शतपथी गोटे केस आसाला प्रिविलेज एग्नेस्ट द सेल्फ इनक्रिमिनेशन ब्रॉडेंड इन द स्कोप यही केस रु तांकर माने ये सब जिन जाना कथा ये कि वन आर्टिकल 20 अंडर जो सेल्फ इनक्रिमिनेशन अच्छी ये को जगह तुम चैलेंज
এই দুইটা কেস তোমার নন্দিনী শতপথী কেস আউ সেলভি ভার্সেস স্টেট অফ কর্ণাটকা এটি কଣ ହେଲା ନା ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଏଗନେଷ୍ଟ ଦି ଇନଭଲେଣ୍ଟାରୀ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା କି ତମର ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ହେଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ତମର ବିନା ଅନୁମତିରେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏବେ ଧର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି କି ନା ତୁ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ କରା କ'ଣ ସେଟା ଯେଉଁ ସତ କହିବୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ କରାନ୍ତି ଯେଉଁ ହିପ୍ନୋଟାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ର ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଦି କୋର୍ଟ ହାଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଇନଭାସିଭ୍ interrogations and reinforcement right to silence is also a right hela and article 20 may not apply to purely civil or regulatory probes in some context okay then the protection but the nuanced court balance investigatory needs an individual right. The recent jurisprudence clarifies scope in the light of the contemporary investigations okay then তোমার সেই আর্টিকেল 21 सब जिन लिखा लाइफ टू इंक्लूड द डिग्निटी योर लिवलीहुड योर प्राइवेसी योर हेल्थ योर इन्वायरमेंट योर गो टू अवार्ड ये सब तुम जिनस हम आर्टिकल 21 ने and no person shall be deprived of his personal life and or the liberty expect according to the procedure established by the law सब तुम आसो कि प्रोसीजर एस्टाब्लीश बाय द लॉ द्वारा जो सब प्रोसीजर एस्टाब्लीश होगी अच्छी तुम ता ये सब जिन माने एसबू जिन नुह है सब आगे लॉ रे लिखाई कि आम राइट टू लाइफ इज आवर पर्सनल माने आवर फंडामेंटल राइट ओके तापर से आर्टिकल 21 केस रे दुटा केस भी आसला जेम तुम ए के गोपालन केस ऑफ 1950 तुम कौन कहला इट इज ए नैरो इंटरप्रिटेशन रेजिस्ट रीडिंग ड्यू प्रोसेस इनटू दी आर्टिकल 21 ओके माने एटा तुम गोटे नैरो इंटरप्रिटेशन थिला इट्स रिस्ट्रिक्टेड रीडिंग ड्यू प्रोसेस इनटू आर्टिकल 21 एंड मेनका गांधी लेटर एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 सिग्निफिकेंटली तुम आर्टिकल 21 अंडर दुटा पार्ट अच्छी ए के गोपालन केस आउ मेनका गांधी केस ए के गोपालन केस हूँ तुम कहला कि एटा तो बहुत गोटे नैरो इंटरप्रिटेशन था 1950 मसीहा कथा कहूँ जो टाइम नुआ स्टार्ट होता इट रेसिस्ट रीडिंग ड्यू प्रोसेस इनटू दी आर्टिकल 21 ओके तापर जो मेनका गांधी केस आसला ये तार जो ड्यू प्रोसेस जिनसटा को एक्सपैंड करदेला आर्टिकल 21 बाइस एवं आम जो लाइफ एंड लिबर्टी अच्छी एटा बहुत नैरो नुह इट इज ए वेरी ब्रॉड पॉइंट आम लाइफ आउ लिबर्टी आम हक माने माने फंडामेंटल राइट तुम चाहिए ताको नहीं पारिबो नहीं तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे माने 1978 रे द पासपोर्ट इबॉन्डेड केसेस व्हिच लीड टू द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ रिक्वायरिंग द फेयरनेस एंड रिजनेबलनेस एटी कौन ताका जो पासपोर्ट रखी देथिले मेनका गांधींकर सेटू गोटे क्वेश्चन पड़ेगा ता उपरकू कि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय द लॉ कि प्रोसीजर जहाँ सब अच्छी लॉ रे जहाँ लिखाई सेगुड़ा फॉलो करिकी रिजनेबली पासपोर्ट निया जाइछि तो ना एमती ता कतरू छड़ेकी रखी एंड इट इज लिंक्ड विथ जमी पूर्व भी कही से जो यहाँ 14, 19, 21 ट्रांसफॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जुरिस्प्रुडेंस एटा मोर राइट टू इक्वालिटी मोर फ्रीडम मोर डिग्निटी मोर लिबर्टी ए सब केस रू ए सब माने ए सब जिनस ए सब केस टिके हाइलाइट है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1978 तापर एटा गोटे केस अच्छे तुम फ्रांसिस कोहली मुलिन द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द बेसिक नेसेसिटी एंड डिग्निटी स्टेट ड्यूटी हाइलाइटेड ओके ओल्गा टेलिस केस रे राइट टू लिवलीहुड प्रोटेक्टेड एंड eviction and eviction impacting the livelihood scrutinized under article 21 देखो टाइम टू टाइम article 21 अंडर को केते केते जिंस सब ऐड हेकी जाउची जेमति कि फास्ट तमर ऐड हला गोटे जिंस प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रे तमर सब जिंस हेइ छना नाही सेटा तमर पासपोर्ट केस रो तमे देखिलो फास्ट तमर गोटे नैरो इंटरप्रिटेशन हेइतला तमर एक के गोपालन केस रो जोटा कि मेनका गांधी केस रे जाई कि से डिग्निटी केसटा तमर आउरी वाइड हला देन तमर देखिलो तमर केते डिग्निटी लिवलीहुड प्राइवेसी हेल्थ ये सब किसी तुम आर्टिकल 21 अंडर जाऊँगा देन तुम राइट टू लिवलीहुड ये सब तुम केत स्क्रूटिनाइज तुम जो कहली ओल्गा टेलिस केस ये तुम राइट टू लिवलीहुड इज प्रोटेक्टेड तो तापर गोटे अच्छे फ्रांसिस कोरेली मुलिन तुम राइट टू लाइफ इंक्लूड द बेसिक नेसेसिटी मोर बेसिक नेसेसिटी बंचिया को कौन अच्छी से भी तुम आड है जमी मो खाया कुछ खाଇବା तो दरकार ना कि गोटे खाइबी कि गोटे पिंधिबी कोटे गोटे रही ये सब जिन मोर राइट मोर बेसिक नेसेसिटी ये राइट टू लाइफ सहित कनेक्टेड मुझे न खाइबी कोटी न रही किसी न पिंधि बंची केमती
and the dignity and the state duty to highlight it. State duty भी ये सब जिन लोक जगिया स्टेट ड्यूटी से जो स्टेट तुम नुआ नुआ सब स्कीम नहीं कि आसे से जो तुम स्टेट नुआ नुआ से स्कीम साहाଯ୍य तुम बंटन करे तापर केस पुट्टस्वामी केस रिसेंट केस ऑफ 2017 प्राइवेसी ऊपर राइट टू प्राइवेसी रिकॉग्नाइज्ड एज माने इंट्रिसिक टू आर्टिकल 21 एंड ह्यूमन डिग्निटी एटी जतिक कथा तुमको कहली आर्टिकल 21 ने टाइम टू टाइम नुआ नुआ जिन आड हो जाकू से एग्जाम रे कैप्चर कर खाली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ए वेरी गोटे लाइन लिखी देती बट ता सहित आम देखिले हेल्थ अच्छी एनवायरमेंट अच्छी तुम लिवलीहुड अच्छी तुम माने आउ कौन देखिले तुम प्रोसीजर एस्टाब्लीश बाय द लॉ जो ऊपर तुम जो केस होता मेनका गांधी केस डिग्निटी केस एटी भी सहित तुम रिलेट कर केस पुट्टस्वामी केस राइट टू प्राइवेसी तुमको जब पचार राइट टू प्राइवेसी तुम केते नंबर आर्टिकल जाऊँगी राइट टू प्राइवेसी इज इन योर आर्टिकल नंबर 21 जोटा कि तुम केस पुट्टस्वामी केस ऑफ 2017 कहगला and it implication for the data protection and body autonomy and state surveillance जब स्टेट को जगह सर्विलांस करुच्च गुप्त कि तुम जहाँ भी कि तुम डाटा प्रोटेक्शन उपर नहीं किसी जिनस अच्छी तो तुम से राइट टू प्राइवेसी है तापर डेथ पेनाल्टी एंड दी प्रिजनर्स बच्चन सिंह सॉरी बोला बच्चन सिंह कौन कि से केस कहला ना द डेथ पेनाल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल बट रिजर्व फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डेथ पेनाल्टी आमर कॉन्स्टिट्यूशनल बट ये जिन लिखा बच्चन सिंह केस रे तुम लिखाला कि आर्टिकल 21 अंडर रे तुम रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस तुमको जाकि फांसी दिज्व जमी निर्भया रेप केस है माने बहुत रेयर ऑफ केस रेयर ऑफ केस तुमको डेथ पेनाल्टी दिज्व तुम बच्चन सिंह केस जोटा इंटरप्रिटेट है ये भी तुम आर्टिकल 21 अंडर जाऊँगी प्रिजनर्स राइट कोर्ट प्रोटेक्ट एग्नेस्ट इनह्यूमन ट्रिटमेंट एंड एनश्योर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स किसी गोटे मिनिमम स्टैंडर्ड्स से जो माने जो मैंने जेल रोच रुहतु जमी किसी इनह्यूमान माने अमानुषिक किसी अत्याचार न हो ट्रिटमेंट जमी किसी न हो से प्रति भी तुमको आर्टिकल 21 किसी अधिकार दौर and article 21 has become the repository for the socio-economic and the personal liberty rights. The courts expanded rights but emphasized reasoned standards and separation of power. Political implications, legislation and policy must conform to article 21 standards of fairness and dignity. Public interest litigation often rely on article 21 to enforce socio-economic right बुझल तुम जो फंड PIL सब इश्यू हो तुम जलियाल भी देखी जलियाल 1 2 से कौन फास्ट PIL इश्यू करथिला तो से PIL इश्यू तुम कौ राइट जाऊे तुम जो PIL इश्यू करुच एटा तुम आर्टिकल नंबर 21 अंडर रे एटा तुम गोटे राइट कौन पाई अच्छी तुम सोशियो इकोनोमिक राइट को देखापी तुम आर्टिकल नंबर 21 अच्छी माने सर कौन PIL अच्छी द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तापर प्रोटेक्शन ऑन द अरेस्ट एंड डिटेंशन आम देखिले माने तर इनफॉर्म द ग्राउंड कंसल्ट द लॉयर प्रोसीजर बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर या देखिले एंड स्पेशल प्रोविजन एंड द सेफगार्ड्स एक्जिस्ट फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन ओके एंड आर्टिकल 22 अंदर एक गोपालन गोटे केस अच्छी अर्ली वैलिडेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विथ लिमिटेड रीडिंग ऑफ आर्टिकल 22 एंड सब्सिक्वेंट jurisprudence enhance procedural safeguards and review mechanism है ये सब जिन तुम जब किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो तुम केस तुमको जहाँ सब जिन कहली बट तुम एक गोपालन केस कहला कि अर्ली वैलिडेशन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन विथ लिमिटेड रीडिंग इन आर्टिकल 22 कि मत अर्ली वैलिडेशन भी दरकार मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन करने जाऊँगी जब कोर्ट चाहिए रिव्यू कर ATM जबलपुर केस रे कहला जोटा कि हमर इमरजेंसी एरा रे लगी कंट्रोवर्शियल जजमेंट दैट कटेल सर्टेन राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी लेटर जो लेटर कहला ना जो जुरिडिक्शन अनुसार कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस मूव टू रिस्टोर प्रोटेक्शंस एंड सब्जेक्ट सच रूलिंग टू सिवियर क्रिटिक माने तुमको जो तुम पर्सनल राइट किसी जो इमरजेंसी टाइम रे निया जाइथिला लेटर से सब जिन तुमको दिगला तो प्रोटेक्शन तुमको रिस्टोर कराइगला कहला कि सब जिन सिवियर रु सिवियर हेले ही अप्लाई हम ये सब जिन केस रे माने ये सब जिन को बंद करिया कथा नुह है यहाँ तुम ATM जबलपुर केस देन तुम राइट टू इनफॉरमेशन माने राइट टू इनफॉर्म ऑफ ग्राउंड लीगल रिप्रेजेंटेशन जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ डिटेंशन ये सब जिन तुम रहा तापर ये तो जिन तुम बस ये तुम रहा ये तुम जो केस जी सब रहा मुझे गोटे लाइन सब लिखिदे ये केस तुम आर्टिकल 19 20 21 तुम देख
रमेश थापर केस, केदारनाथ केस, बेंटेन कोलेमान केस, तुमर तापरे श्रेयस निहाल केस, तुमर मेनका गांधी केस, पुट्टस्वामी केस, नंदिनी सतपथी केस, सेल्वी केस, ए के गोपालन केस एंड एडीएम जबलपुर केस, ये सब तुम रेयर ऑफ रेयरेस्ट माने केस तुम जो डेथ केस दिया जीवो ये सब जिनस लिखाईगला। बस ये तुम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 इज डिटेली डिस्कस्ड विथ सब केसेस। ए केसेस गुड़ाक जब अधिक देखा चाहिए देखिपार, बट ये सब जिन बेसी देखा खाली तार जजमेंट जान कौन होती कौट कौट आम इंस्टीट्यूशन माने सरी आम कन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन होती से इंटरप्रिटेशन जजमेंट गुड़ा आम इंपोर्टाट ना कि से केस कौन होता से गप दरकार नहीं आम जजमेंट इंपोर्टाट कौन कौन इंटरप्रिटेशन है कौन कौन टाइम टू टाइम चेंज होती जोटा कि क्वेश्चन रे कैप्चर हम। तो बस आज ये काली आम देखा आर्टिकल 22 टू सरी आर्टिकल 23, 24 एंड बाकी जब तुम रेस्ट अच्छे 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30 ये जिन देखी सारापर आम जो तुम रिट इश्यू देन तुम आर्टिकल 31 टू 35 जाए सरला डीपीएसपी स्टार्ट करवा देन तुम प्रेसिडेंट है। तो आज ये आउ जहाँ डाउट मत कमेंट पचार टाटा।